Namaskar everyone, this is your EVS class. How are you all? I hope you guys are healthy. See, as we completed our textbook exercise, from today we are going to start our worksheet exercise. See the page number 6, chapter 2, keeping safe, day 1 activity. Day 1 exercise. Question number 1 is MCQ. So first MCQ is, which of the following can cause injury to you? मतलब कौन सा इनमें से है जो आपको इंजरी कर सकता है, तो इंजर्ड कर सकता है. तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए नाइफ, ऑप्शन बी इरेजर, ऑप्शन सी पेंसिल. सो इरेजर और पेंसिल से इंजरी होती है? नो. सो इट इज़ अ नाइफ हु कैन कॉज इंजरी, है ना. तो वी हैव टू टेक ऑप्शन ए हियर. नाउ सी द सेकेंड वन. विच ऑफ द फॉलोइंग should not be touched with wet hands. wet hands से क्या नहीं टच करना चाहिए? So options are, option A toothbrush, option B electric switches, option C notebook. So toothbrush तो हम धोते हैं पानी में, है ना. So we can touch with wet hands, and notebook also we can touch, but we should not touch electric switches with wet hands. Now see the third one, last one. We must keep the things. हमें ये चीज़ रखनी ही चाहिए. Option A near the window, option B anywhere, and option C in the proper place. हमें चीज़ें रखनी चाहिए. कहाँ रखनी चाहिए? Near the window? No. Anywhere? No. In the proper place, है ना. So take the option C here. Now see the question number 2. Fill in the blanks. First blank is play outdoor games blank the house. हमें आउटडोर गेम्स खेलनी है, तो हम घर में खेलेंगे या घर के बाहर खेलेंगे? तो ऑप्शंस आर इनसाइड और आउटसाइड. तो ऑफ कोर्स आउटडोर गेम्स कहाँ खेली जाती है? आउटसाइड. सो आंसर इज आउटसाइड. टिक द आउटसाइड एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक. वी प्ले आउटडोर गेम्स outside the house. Second one is, we should not touch blank hot irons and water tap. क्या नहीं टच करना चाहिए? Of course hot iron, है ना. So we should not touch hot iron. Third one is, we should not play with blank toys and matchstick. ऑफ कोर्स इट्स मैचस्टिक, है ना. टॉयज से तो हम सब खेल सकते हैं. सो वी शुड नॉट प्ले विथ मैचस्टिक्स. डन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन इज, कीपिंग थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम ट्रिपिंग ऑन थिंग्स. मतलब चीज़ों को जगह पे हम अगर रख देंगे तो हम उसके ऊपर ट्रिप नहीं होंगे. तो यस, इट इज़ ट्रू, है ना. सो राइट डाउन टी इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज, वी कैन स्लीप. यहाँ पे ये स्लीप नहीं है, ये स्लीप है. SLIP, स्लीप ऑन अ वेट फ्लोर. ऑफ कोर्स हम वेट फ्लोर पे चलेंगे बिना ध्यान रखे, तो we will sleep. So this statement is true. Write down T in front of second one. Third one is, we can play with sharp objects.
हम शार्प ऑब्जेक्ट्स के से खेल सकते हैं. No, it is wrong. So we have to write down F here. Now see the question number 4. Find out this important emergency numbers. See, यहाँ पे ऐसे इमरजेंसी नंबर्स दिए हैं जो हमें हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल है ना. तो फर्स्ट वन है पुलिस स्टेशन. तो पुलिस स्टेशन का जो नंबर है वो कौन सा है इमरजेंसी नंबर? इट्स 100. सेकेंड वन है एम्बुलेंस. ये आप सब जानते हैं 108. थर्ड वन फायर ब्रिगेड 101. So keep it in your mind, all these number. Now turn the page number 7. See day 2. Question number 1 MCQ. First one is cross the road when the pedestrian traffic light is blank. See, cross the road when the pedestrian traffic light is blank. जब हमें रोड क्रॉस करना है, पद यात्रियों को रोड क्रॉस करना है, तो कौन सी लाइट ऑन होनी चाहिए? तो ऑप्शंस आर रेड, ऑप्शन बी इज ग्रीन, ऑप्शन सी इज ब्लू. सो तो करेक्ट वन इज रेड, बिकॉज व्हेन द रेड लाइट इज ऑन vehicles are stopped. So at that time we can cross the road. So take the option A, write down in a blank. Now see the second one. In bus we must keep blank. Option A dancing, option B disturbing, option C quiet. So in bus we must keep quiet. हमें शांति से बैठना है, क्वाइट होके चुपचाप बैठना है. ओके, नो डांसिंग, नो डिस्टर्बिंग अदर्स. डन. सो टिक द ऑप्शन सी क्वाइट एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक. थर्ड वन इज वी शुड यूज अ blank to cross the road. We should use blank to cross the road. Option A subway, option B cover bridge, and option C any of these. So sorry, यहाँ पे over bridge है. So we should use always zebra crossing or a subway to cross the road, है ना. So यहाँ पे हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? सबवे, ओवर ब्रिज एंड एनी ऑफ दीज. So right option is option A, subway. So we have to write down and tick the correct one. Now see the question number 2. Fill in the blanks. First blank is we must cross the road only at the blank. यानी हमें क्रॉस करना चाहिए रोड व्हेन हम रोड के किस साइड हो, मतलब आउटसाइड हो या इनसाइड हो. तो ठीक करेक्ट वन इज ऑफ कोर्स आउटसाइड, है ना. वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट द आउटसाइड. नाउ सी द सेकेंड वन. वी शुड नॉट रन ऑन द ब्लैंक. वी शुड नॉट रन ऑन द स्टेयर्स और प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में तो हम रन करते हैं, दौड़ते हैं ना, तो इट्स स्टेयर्स. सो राइट डाउन स्टेयर्स. नाउ सी द थर्ड वन. वी मस्ट नॉट ब्लैंक इवन इन फन. हमें फन मज़ा करने के टाइम भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए. हेल्प या पुश ही नहीं करना चाहिए, हेल्प तो करनी चाहिए, है ना. सो वी मस्ट नॉट पुश इवन in fun. Fourth one is always walk on the footpath or on the blank side of the road facing the traffic. तो हम अगर फुटपाथ पे चल रहे हैं तो हमें कौन सी साइड की फुटपाथ पे चलना चाहिए, राइट या फिर लेफ्ट. तो वी शुड वॉक ऑन फुटपाथ ऑन द right side. So take the right and write down right in a
fourth blank. Now see the question number 3. Circle the odd one out. यहाँ पे हमें बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, है ना? तो इसमें से हमें जो ऑड है यानी जो सबसे अलग है उनको सर्कल करना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज स्विचेस, plug, wires and school bag. See, switches, plug and wires, these are the electronic stuff, है ना, electric stuff. और school bag है वो इन सबसे अलग है, वो electric stuff नहीं है. So we have to circle school bag here. See the second one, scissors, bandage, playground and cotton. So scissors, bandage and cottons are part of first aid box, है ना? So we have to circle playground. Third one is traffic light, zebra crossing, subway and bandage. So ये जो है वो सब रोड पे होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स, zebra crossing, subway, but bandage is a part of first aid box, so we have to circle bandage here. Last one, fourth one, blade, bench, knife and scissors. So blade, knives and scissors, all these are जो होते हैं ना sharp objects, all these are sharp objects. And bench is out of all these, this is odd one, so we have to circle bench here. Now turn the page number 8, day 3, question number 1, fill in the blanks. First blank is the immediate help given to an injured person is called blank. हम immediately कोई जो इंजर्ड पर्सन होता है उनकी हेल्प करते हैं, तो उस हेल्प को हम क्या बोलेंगे? तो इट इज़ ऑपरेशन और फर्स्ट एड. ऑफ कोर्स इज फर्स्ट एड, हम डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करेंगे नो. सो टेक द फर्स्ट एड एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक. सेकेंड वन इज पोस्ट एड शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड ब्लैंक. यानी इंजर्ड पर्सन है, यहाँ पोस्टेड नहीं है, पर्सन आएगा. क्या आएगा? पर्सन. पर्सन शुड बी गिवन टू एन इंजर्ड ब्लैंक. यानी कोई पर्सन इंजर्ड है तो उन्हें हम हम उन्हें कब देखेंगे? हमारा पेशेंट कब, मतलब हम उसे कब देखेंगे? इमीडिएटली या आफ्टर 1 hour? तो ऑफ कोर्स we should give an attention to him immediately, यानी तुरंत ही. तो write down immediately and take that. Third one is we should use an blank cream to wipe cuts आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? cuts and wounds. So हम कट लग गया है या वुंड है हमारे हमें लग गया है तो हम क्या लगाएंगे? ऑर्डिनरी क्रीम लगाएंगे या एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे? हम लगाएंगे एंटीसेप्टिक क्रीम. सो टेक दैट वन एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. मैच द फॉलोइंग. column A to column B you have to match and write down answers here only. Okay, so first one, wet hands. तो wet hands first aid box should not be used to touch electric switches. Yes, with wet hands we should not be used to touch electric switches. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट के साथ बी को मैच करना है. तो राइट डाउन बी इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट वन. यहाँ पे ABCD नहीं दिया है, यू कैन राइट डाउन. नाउ सी द सेकेंड वन, सबवे. तो सबवे फर्स्ट एड बॉक्स, नो, बी इज़ ऑलरेडी डन. शार्प ऑब्जेक्ट,
No. Underground path. Yes, subway is a underground path. So write down D in front of second one. Third one is cotton. So first aid box. Yes, cotton is a part of first aid box. So write down A in front of third one. Now see the last one, knife. Knife is a sharp objects. Then write down C in front of fourth one. Now see the question number 3. What can happen when? यहाँ पे हमें ऐसे सिचुएशन दी है कि अगर ऐसा होगा तो what happen, तो क्या होगा, तो ये हमें लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज यू वॉश योर हैंड्स एंड टच टोस्टर विथाउट वाइपिंग योर हैंड्स. यहाँ पे फाइटिंग है, वो कट करके यहाँ पे वाइपिंग लिखना है. ओके, वाइपिंग योर हैंड्स. हमें क्या करें, हमने हैंड वॉश करें और वो पोछे बिना ही हम टोस्टर को टच करने गए. टोस्टर, यू नो ऑल what is toaster? Toaster is a electric machine. So तो हम गीले हाथ से टच कर सकते हैं? No. तो क्या होगा? आंसर इज यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. आपको क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. सेकेंड क्वेश्चन इज यू डू नॉट कीप रूम टाइडी एंड केप्ट ऑन द फ्लोर. अगर आप अपना रूम टाइडी नहीं रखोगे और सारी चीज़ें फ्लोर के ऊपर ही रखोगे तो क्या होगा? आंसर इज यू माइट ट्रिप ओवर देम एंड इंजर्ड योरसेल्फ. आप उसके ऊपर ट्रिप हो जाओगे, गलती से पैर लग जाएगा और आप क्या हो जाओगे? इंजर्ड हो जाओगे, आपको लग जाएगी. क्वेश्चन नंबर 3 इज यू आर केयरलेस and play very close to the gas stove. आप केयरलेसली गैस स्टोव के पास खेल रहे हैं तो क्या होगा? आंसर इज यू माइट बर्न. आप जल जा सकते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 4 यू डू नॉट पुट वेजिटेबल एंड फ्रूट पिल्स इनटू द डस्टबिन. आपने डस्टबिन में वेजिटेबल्स का कचरा और जो फ्रूट पिल्स है उसे नहीं डाला तो क्या होगा? आंसर इज यू माइट स्लीप ओवर इट. आपका पैर उसके ऊपर आ जाएगा और आप स्लीप हो जाओगे, है ना. लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 यू ट्राई टू बोर्ड अ मूविंग बस. यानी आप एक मूविंग बस जा रही है, उसे कैच करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हो तो क्या होगा? यू माइट स्लीप ओवर इट. आप स्लीप हो जाओगे और गिर जाओगे और आप बहुत गंदी तरीके से इंजर्ड हो जाओगे. सो दीज आर दी सिचुएशन व्हाट कैन हैपन व्हेन. सो वी विल रिपीट. लिसन वेरी केयरफुली and repeat after me. Question number 1. You wash your hands and touch toaster without wiping your hands. Answer is you might get an electric shock. Put full stop. Question number 2. You do not keep room tidy and kept on the floor. Answer is you might trip over them and injured yourself. Question number 3. You are careless and play very close to the gas stove. Answer is you might burn. Question number 4. You do not put vegetable and fruit peels into the dustbin. Answer is you might sleep over it. Last question. Question number 5. You try to board a moving bus. Answer is you might sleep over it.